Chalo, good morning. One more small chapter like this, and that is known as Ind AS 12, that is income taxes. Perfect. Now, before me taking you to anything else on income tax, that is chapter design or whatever it is, let us understand what is Ind AS 12 and why Ind AS 12. So, the idea is that we know there are two things. One is accounts, so Ind AS 12, income tax. And so one thing we know, we have accounts, and one thing we know, we have tax. Now there is lot of discrepancies between accounts and tax. So accounts में हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, but taxable income calculate करने के लिए चीज़ें अलग हो जाती है. So we have a different tax law and we have a different accounting law. So for that reason, we have something which is known as Ind AS 12, which is known as income tax. Are we exactly clear with that one? So introduction में मैं डायरेक्टली पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं लिख के रखा है. सो आई जस्ट टेकन अप द क्वेश्चन. An asset costing 1 lakh was purchased on 1119. Depreciation at the rate of 20% was charged on SLM. So 1 lakh का 20% depre will be 20,000. So 20,000 depre for year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. 5 साल का depre लगेगा because depre 20% पे बोला. However, for tax calculation 100% is allowed. So tax के calculation के लिए पूरा depreciation 1 lakh फर्स्ट ईयर में लग जाएगा. Profit before depre and tax is 2 lakh for year 1 and year 2. How would Ind AS 12 change the way the taxes are accounted for? So I am saying life without Ind AS 12. जब Ind AS 12 नहीं था, तो I am saying this is my accounts the way people would look like. This is my year 1, this is my year 2. They have given me NPB DT 2 lakhs in year 1 and 2 lakhs in year 2. लेस क्या करेंगे हम लोग? Depreciation. If I am not wrong, depre as per 20% SLM is allowed as per accounts. Asset का value था अपना 1 lakh. 1 lakh पे 20% depreciation मारेंगे तो 20,000 in year 1, 20,000 in year 2. तो अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000. I hope you are very clear with this. And now comes that we have to do something which is known as less the tax. अब टैक्स चार्ज करने के लिए 1,80,000 पे टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज ये जो 1,80,000 का जो प्रॉफिट आया है वो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है. टैक्स इज चार्ज ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट. तो मैं यहीं पे आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि वी विल कैलकुलेट समथिंग विच इज़ नोन एज टैक्सेबल प्रॉफिट. सेम फॉर योर 1 एंड फॉर योर 2. पिकिंग अप सेम थिंग्स NPBDT. सो NPBDT इज़ 2 lakh, NPBDT इज़ 2 lakh. लेस क्या करना है हमें? डेप्रीशिएशन. 100% depreciation is allowed for the tax purpose. So I'll say 1 lakh. And I'll say no depreciation. So आपका NPBT आ जाएगा 1 lakhs और 2 lakhs. And can I say इस पे टैक्स लगेगा? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? So टैक्स का रेट नहीं दिया, but let's assume the tax rate to be 30%. So I'm saying tax at the rate of 30%, but वो टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगेगा. So this has to be the case, or I would rather not say here, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ. So this is अपना tax at the rate of
30%, 30,000, 30,000. परफेक्ट है एकदम. Yes sir, sorry. So tax at the rate of 30% is 30,000 and 60,000. और वो टैक्स यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स में दिखाने के लिए. सो 30 and 60 क्लासी. तो फिर हमें यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिखेगा? 1,50,000 एंड 1,20,000. कोई डाउट आपको? अब जो भी अकाउंट्स कर रहा है उसको सिर्फ अकाउंट्स दिख रहा है, उसको टैक्सेबल कैलकुलेशन कभी भी दुनिया में दिखाई नहीं देते. सो व्हाट इज ही लुकिंग एट? नाउ ही इज लुकिंग एट 2 years. उसमें उसे दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इज 150 एंड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इज, सो हिज ऑब्जर्वेशंस आर 1, प्रॉफिट फॉर ईयर 1 इज 150 and year 2 is 120, which shows a decline of 30,000. मतलब उसको दिख रहा है कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया. कितने से प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया सर? 30,000 से प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया. बट इफ यू लुक एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो अपना 1,80,000 है. तो प्रॉफिट डिक्लाइन कहाँ हुआ? सर वो तो टैक्स वाला काम है ना, अकाउंटिंग लोगों को थोड़ी समझ में आता है वो. सर अकाउंट्स वाले लोग तो ये देखेंगे ना. तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार, प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो सेम है. तो फिर उसने दूसरा कैलकुलेशन देखा कि सर टैक्स बढ़ रहा है. सो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 इज दैट टैक्स फॉर ईयर 1 इज 30,000 एंड year 2 is 60,000, which shows the increase by 30,000. तो मैं बोला नहीं यार, टैक्स इज नॉट इंक्रीजिंग. बोलता है सर कहाँ नहीं इंक्रीज हो रहा है, देखो ना आप 30,000 से लेके कहाँ पे जा रहा है, ये 60,000 पे तो जा ही रहा है. तो मैं बोला यार नहीं, टैक्स रेट तो 30% है, टैक्स रेट सेम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम है, तो आपका टैक्स कहाँ बढ़ रहा है? सो देन ही मेड अ थर्ड ऑब्जर्वेशन. ही सेड सर अब पता चल गया आपने क्या मिस्टेक किया है, बहुत सिली मिस्टेक किया है सर आपने. बोला क्या सिली मिस्टेक किया है? बोलता है सर 1,80,000 का 30% 30,000 थोड़ी होता है. 1,80,000 का 30% इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 54,000 है ना, विच इज नॉट 30,000 ऑल्सो एंड नॉट 60,000 ऑल्सो. So there are very silly things that does not match up to it. Are we exactly clear with that? लोगों को लग रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, लोगों को लग रहा है टैक्स बढ़ रहा है, लोगों को लग रहा है हमारे कैलकुलेशंस गलत हो रहा है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें अकाउंट्स और टैक्स को मैचअप कराना था. Are we exactly clear with that one? So this is where I say we come into the picture which is known as Ind AS 1112. And I am saying this time it is not without, this is with. तो how do you match up now? तो अब मैंने सारे कैलकुलेशंस वापस लिए. मैं इनफैक्ट जब भी ये स्टैंडर्ड सिखाता हूँ तो आई वेरी क्लियरली से दिस इज अ मैरिज बिटवीन टू थिंग्स. दिस इज मैरिज बिटवीन अकाउंट्स एंड दिस इज मैरिज बिटवीन टैक्स. इंडिपेंडेंटली दे विल मेंटेन देयर एंटिटी ऑल्सो. अकाउंट्स अपना काम ही करता रहेगा, टैक्स अपना काम ही करता रहेगा. दे विल नॉट सैक्रिफाइस और दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग दैट दे आर डूइंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो ट्राई टू मैच अप द प्रेजेंटेशन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर 2 लाख 20,000 20,000 180 180, टैक्स 30 और ये आ रहा है वो भी बराबर है. सर मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाउ विल आई चेंज द प्रेजेंटेशन नाउ? सो आई विल से कि टैक्स जो आ रहा है आपका ये 30 एंड 60 ये रहने दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट फिर आप ये टैक्स को है ना जो 30 और 60 दिखा रहे हो ना, इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं एंड वी कॉल इट एज करंट टैक्स। So we'll have a current tax of 30 and current tax of 60. कॉन्सेप्ट समझा? मतलब मैंने पूरा रिस्पेक्ट दिया किसको? टैक्स को। बट देन आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स ऑल्सो, कि हमारे हिसाब से टोटल टैक्सेशन तो 54,000 आना चाहिए था एंड 54,000 आना चाहिए था। ये कौन सा 54,000 है? 1,80,000 का 30%। तो फिर एक हमने नया वर्ड निकाला विच इज नोन एज डिफर्ड टैक्स। अब अगर करंट टैक्स 34,000 है और टोटल टैक्स 54,000 है, तो हम बोल रहे डिफर्ड टैक्स कितना? तो टोटल 54 आ जाएगा। अगर हमारा करंट टैक्स 60 है और टोटल टैक्स 54 है, तो हमारा डिफर्ड टैक्स आ जाएगा -6,000। So now you will have the total of taxation as current tax and deferred tax, and you will have net profit after tax as 1,80,000 minus 54 is 1,26,000 and 1,26,000. Now if you are understanding the way the presentations are sorted out, आपके ऊपर के 3 ऑब्जर्वेशंस में वापस लेके आ रहा हूँ। Have a look at the 3 observations that you have, जो पहले भी किए थे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ईयर 1 में आपका प्रॉफिट 1,26,000, ईयर 2 में आपका प्रॉफिट 1,26,000 विच डज नॉट शो एनी डिक्लाइन। जबकि डिक्लाइन था ही नहीं तो डिक्लाइन नहीं दिखाना चाहिए। डिक्लाइन हो और डिक्लाइन दिखा रहे तो अलग बात है, बट डिक्लाइन ही नहीं तो डिक्लाइन क्यों दिखाना चाहिए? अच्छा, टैक्स फॉर ईयर 1 इज 54 and tax for year 2 is also 54 which does not show any, because आपका टैक्स रेट अगर 30% था और वो 30% अपने को 1,80,000 पे ही मारना है, सो 1,80,000 का ही तो 30% हमारा 54,000 आ रहा है ना। करेक्ट है कि नहीं? सो अगर 1,80,000 का 54,000 30% दिख रहा है, तो फिर टैक्स भी थोड़ी बदलना चाहिए था। एंड थर्ड कैलकुलेशन, 1,80,000 का 34% इज 54,000 विच इज वेरी रीजनेबल इनफ। So what is Ind AS 12 all about? Ind AS 12 is all about matching these two things. Matching taxable profit का tax, that is current tax, and also matching tax as per accounts. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद अपन। तो ये दोनों मैच करने के लिए हम लोग ने एक स्टैंडर्ड बनाया विच इज नोन एज Ind AS 12. So Ind AS 12 in right sense is nothing but matching of two things. What two things are we matching? First one, we are matching tax and we are matching accounts. So tax का calculation जो आप DT में सीखते हो, accounts का calculation जो आप FR में सीखते हो, उन दोनों को खाली respect देके एक बार मैच कर लेना, that is Ind AS 12, that is income taxes. अब वहाँ पे जाएंगे हम धीरे धीरे कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज डिफर्ड, ये डिफरेंस क्यों आया था, ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, वो जाना है अपने को। परफेक्ट है, कोई डाउट्स नहीं है? टू गुड। नाउ बिफोर आई टेक यू टू दी अदर थिंग्स, थोड़े छोटे मोटे डेफिनेशंस। सो आई विल से डेफिनेशन इज पॉइंट नंबर 2 नाउ। माय पॉइंट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, एंड अपना एज यूजुअल आ जाएगा चैप्टर डिज़ाइन में। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 पे हो जाएगा डेफिनेशंस। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस? पक्का? ओके। सो डेफिनेशंस में हमारे पास आएगा फर्स्ट थिंग is known as accounting profit. So this is nothing but net
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स। सो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बराबर से चल रहे हैं, वो एग्जाम्पल को दिमाग में डाल के चलना। सो हाउ मच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000 1,80,000 for year 1, for year 2। Are we exactly clear with that one? So एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, ये पेंसिल में करोगे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है? So this is year 1 and this is year 2। ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो ईयर 1 का अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 1,80,000, ईयर 2 का अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो 1,80,000। पक्का? नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग प्रॉफिट के बाद आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर टैक्स कैलकुलेशंस और एज पर टैक्स लॉज बोल दूंगा मैं। परफेक्ट है। सो हाउ मच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर टैक्स लॉज? 1 lakhs and 2 lakhs, classic। So net profit before tax as per tax loss is 1 lakh and 2 lakhs। चकास है। सो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये हो गया हमारा परफेक्ट है। थर्ड वन याद आना चाहिए आपको, करंट टैक्स। सो व्हाट इज करंट टैक्स? टैक्स एज पर टैक्स लॉस, बराबर है? तो ये हो जाएगा आपका करंट टैक्स। नाउ व्हाट इज करंट टैक्स एज पर द टैक्स लॉस? 30 and 60। So we'll have 30,000 and we'll have 60,000। क्लासिक एकदम। चलिए नेक्स्ट वन, करंट टैक्स के बाद आएगा हमारे पास टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, सी दिस इज वेयर ना द अकाउंटिंग बिकम्स जीनियस फॉर अस। अब आप ये थोड़ी बहुत चीज़ों को इंटीग्रेशन समझ जाओ ना तो बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट आई हैव अ वेरी गुड टैक्स प्रोफेसर, नॉट इन मुंबई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है। उनका नाम है अरविंद तुली। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम जैमिंग करेंगे, जैसे लोग म्यूज़िक में जैमिंग करते हैं, मिल के म्यूज़िक बनाते हैं। बोलते राहुल एक बार अपन अकाउंट्स और टैक्स का जैमिंग करते हैं कि टैक्स के कैलकुलेशंस अलग होते हैं, अकाउंट्स के कैलकुलेशंस अलग होते हैं, और लोगों को बताते कि ये अलग क्यों होते हैं। अभी एग्जैक्टली क्लियर? इसीलिए तो दोनों का प्रॉफिट अलग आ रहा है, बिकॉज आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बोल रहा है 1,80,000 जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट बोल रहा है 1 लाख एंड 2 लाख। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो डिफरेंस क्यों आया? सो ही सेड राहुल मैं बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूं, तू बताना तू क्या सोच रहा है। दोनों का सोचने का तरीका अलग है। अब अकाउंट्स का सोचने का तरीका इज ऑलवेज अक्रूवल। सो दिस इज अक्रूड एंड सी अक्रूवल हैज नथिंग टू डू विद द कैश कि पे किया या नहीं किया, एक्सपेंस रिकॉर्डेड है। पैसा आया या पैसा नहीं आया, ये इनकम है। सेल इज रिकॉर्डेड नॉट व्हेन द मनी कम्स इन, बट सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल इज मेड। सो आपके ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू दिख जाएगा वो, बट पैसा नहीं आया तो वो आपके बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा, बट इनकम तो दिख ही जाएगा। सो टैक्स एक्सपेंस वर्ड जब आता है ना तो इट इज नॉट द वर्ड दैट वी पे टैक्स, ये टैक्स पे किया नहीं, ये टैक्स अक्रू हो चुका है। आपने पे किया नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। व्हेन वी से करंट टैक्स मतलब ये पे करना है, एंड टैक्स एक्सपेंस मतलब ये अक्रू हो चुका है। सो दिस इज टैक्स एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम लोग ने एक बार किया था बहुत अच्छा, यू नो अगेन आई फॉरगॉट द क्लासेस दैट आई वाज वर्किंग ऑन, बट वहाँ पे हम लोग ना 3-4 प्रोफेसर मिलके पूरे सीए फाइनल में एक 4-5 घंटे का सेशन लेते थे, वेयर यू शू शो द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दैट पीपल वर्क ऑन।
बिकॉज अगेन द फ्लॉ विथ यू गाइज राइट नाउ एट सीए फाइनलिस्ट, जब आप टैक्स पढ़ते हो तो टैक्स 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 पढ़ते हो, एफआर तो एफआर 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 पढ़ते हो, ऑडिट तो ऑडिट 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 ऑडिट, बट आपको रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो ये सब कुछ एक साथ में मिक्स करके खाना है. हाँ, पर उस पर केस स्टडीज बनाना आना चाहिए इनको बराबर से. सो टैक्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका 54,000 एंड 54,000. सो दिस इज योर टैक्स एक्सपेंस फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2. परफेक्ट है. अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स. डू यू अग्री विद दिस वन? कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट वन इज डिफर्ड टैक्स. कौन सा टैक्स? डिफर्ड टैक्स. टैक्स receivable, payable in future. Tax receivable or payable in what? Future. जगह से अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपका डिफर्ड टैक्स, व्हाट इज डिफर्ड टैक्स फॉर ईयर 1? आपका डिफर्ड टैक्स फॉर ईयर 1 इज 24,000 एंड डिफर्ड टैक्स फॉर ईयर 2 इज 6,000. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? ये हो जाएगा हमारा डिफर्ड टैक्स. तो आपके अभी तक ये पांचों डेफिनेशन क्लियर है. पहला डेफिनेशन आ गया आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, सेकंड डेफिनेशन आ गया आपका टैक्सेबल प्रॉफिट, थर्ड आका करंट टैक्स, फोर्थ आ गया टैक्स एक्सपेंस एंड लास्ट वन इज डिफर्ड टैक्स. Classic, no doubts on that. Too good. Now you will have two things. मैं धीरे धीरे वहां पे लेके जाऊंगा आपको. So now you will have a deferred tax के अंदर there can be two deferred taxes. One is known as a DTA and one is known as a DTL. DTA stands for deferred tax asset and DTL stands for deferred tax liability. Are we exactly clear with that one? अब DTA और DTL को समझने के पहले हम लोग दो चीज समझेंगे. फर्स्ट वन इज नोन एज टाइमिंग डिफरेंस एंड सेकेंड वन इज नोन एज परमानेंट डिफरेंस. पहला कौन सा डिफरेंस एंड सेकेंड कौन सा डिफरेंस? परमानेंट डिफरेंस. अब टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस समझने के लिए ना मैं आपको सिखाऊंगा AS, नॉट इंड AS. AS 22 is known as accounting for taxes on income. थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में. अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम दैट इज AS 22 एंड इंड AS 12 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ट्वीक है. Are we exactly clear with that one? But ultimate answer, ball game, everything remains the same. So for the first 6 points, you are going to get the same answers. It is just that ये हम 24,000 और 6,000 पे कैसे पहुंचते हैं ना, वो पहुंचने का तरीका अलग है. Are we exactly clear with that one? अब for example, आज सुबह आप कहाँ से आए हो? माहिम से. How did you travel? By train. So you came by train. There can be some other person who can come by rickshaw. That's the tweaking, but ultimately the destination is the same. Are we exactly clear with that one? तो पहले AS 22 भी समझ लेते हैं और फिर उसके साथ इंड AS 12 भी समझ लेते हैं. मतलब एक्चुअली आज के सेशन में हम लोग दो काम करने वाले, AS 22 भी समझ लेंगे और इंड AS 12 भी समझ लेंगे. तो AS 22 में क्या करना है आपको पता है? AS 22 में आपको सबसे पहले टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. And I'll keep on writing the numbers here. So this is number 1. क्या कैलकुलेट करना है सर? टैक्सेबल प्रॉफिट. टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप नंबर 2 पे कैलकुलेट कर लो करंट टैक्स. ईयर 1 की चीजें देखते रहो. हाउ मच इज टैक्सेबल प्रॉफिट?
नहीं, ईयर 1 पे देखते हैं ना खाली बेटा. 1 lakh. Do you agree with that one? Yes. And what is current tax? 30,000. This is my step number 1. Step number 2. No doubts in that. So step number 3 पे आप कैलकुलेट कर लो अकाउंटिंग प्रॉफिट. 1,80,000. Are we exactly clear with that one? स्टेप नंबर 4 पे आप कैलकुलेट करो डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड taxable profit. How much is the difference between the accounting profit and the taxable profit? नहीं, कुछ भी बोल रहे हो सर, मतलब दिमाग में कुछ और परसेप्शन चल रहा है सर. एकदम इंग्लिश, प्योर इंग्लिश. डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट. 80,000. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर. आप ईयर 1 ही देख रहे हो बहुत क्लियरली. आपको पहले ये 6 चीज़ें समझ चुकी है. डिफर्ड टैक्स पे भी मत जाओ, पहले 5 चीज़ों पे चले जाओ, और टैक्स एक्सपेंस पे भी मत जाओ. फर्स्ट वन, डू यू नो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? डिफाइन द वर्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट. Net profit before tax as per account. Very good. What is taxable profit? Net profit before tax as per tax law. Wonderful. What is current tax? Tax as per tax law. Wonderful. What is tax expense? Tax as per account. Wonderful. Now first one, what is step number 1? Taxable profit calculate करना 1 lakh. Step number 2, current tax calculate करना 30,000. Step 3, accounting profit calculate करना 1,80,000. Step 4 पे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करना. अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं, थैंक यू मैम. फोन आया सर का? क्या बात है? ओके ठीक है, चलो. So I'm giving you a good presentation also. ये क्यों ऊपर नीचे जा रहा है भाई? मेरे से क्या प्रॉब्लम है इसको? डन है सर? कोई डाउट? एकदम पक्का? टू गुड. अब सर ये जो डिफरेंस है ना, वो क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? सर डिफरेंस वाज 80,000. तो इसका रीजन ढूंढो. वाई 80,000 का डिफरेंस क्यों आया? अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,80,000 आया और टैक्सेबल प्रॉफिट 1 लाख आया. अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,80,000 आया और टैक्सेबल प्रॉफिट 1 लाख आया. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डेप्री का डिफरेंस आ रहा है. हाउ मच इज डेप्री एज पर अकाउंट्स? 20. हाउ मच इज डेप्री एज पर टैक्स? 1 lakh. 1 लाख. तो रीजन फॉर द डिफरेंस इज डेप्रीशिएशन. सो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको AS12 में हमें डिफरेंस निकालना है और रीजन फॉर डिफरेंस निकालना है. रीजन फॉर डिफरेंस इन टैक्स प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. कॉन्सेप्ट समझा सर? और आपने रीजन निकाला एंड द रीजन इज डेप्रीशिएशन. अब आप ये रीजन को क्लासिफाई करेंगे कि दिस डेप्रीशिएशन जो डिफरेंस आ रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस है कि ये परमानेंट डिफरेंस है. मतलब आपको इसे अभी क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारा कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है. सो यू विल से कि सर ये डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है या ये डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस है. नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये टाइमिंग डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है?
सो सर हम डेप्री की बात कर रहे हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 3, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 4, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 5. दिस इज डेप्री एज पर टैक्स. आई गेस आपने पूरा 100% डेप्री फर्स्ट ईयर में मार लिया, तो सेकेंड ईयर में क्या मारेंगे सर? कुछ नहीं. थर्ड ईयर में क्या मारेंगे? कुछ नहीं. फोर्थ ईयर में क्या मारेंगे? कुछ नहीं. फिफ्थ ईयर में क्या मारेंगे? कुछ नहीं. एंड दिस इज डेप्री एज पर अकाउंट्स. तो आपने यहाँ पे कितना डेप्री मारा? 20,000. यहाँ पे कितना डेप्री मारा? 20. 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 डू यू अग्री विद दिस? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. अब ये टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है? तो आंसर इज कि ये टाइमिंग डिफरेंस है. क्यों टाइमिंग डिफरेंस? बिकॉज टैक्स में पूरा डेप्री 1 साल में लग गया, जबकि अकाउंट्स में पूरा डेप्री 5 साल में लगेगा. पर डेप्री तो लगेगा. अकाउंट्स में भी टोटल डेप्री 1 लाख लगेगा, टैक्स में भी टोटल डेप्रीशिएशन 1 लाख लगेगा. तो यहां पे अगर हम टोटल बोलेंगे तो ये टोटल आएगा 1 लाख, ये टोटल आएगा 1 लाख. टोटल डेप्रीशिएशन दोनों में 1 लाख ही चार्ज होना है. बट अकाउंट्स में 5 साल और टैक्स में 1 साल. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा डिफरेंस हो गया भाई? ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया. Concept clear? Any doubts, sir? Too good. So timing difference or permanent difference clear? Sir, permanent difference का example दिखाओ. Permanent difference का example, have a look here. Year 1, year 2, and let's say we have something which is known as penalty. So penalty as per tax and penalty as per accounts. So let's say you did something wrong and you had to pay a penalty of 10,000. अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया भाई, खर्चा हो गया. टैक्स कहता है कि नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है, आप बेयर करो, मैं इसे एज पर टैक्स लॉ अलाउ नहीं करूंगा. तो मैं बोला सेकेंड ईयर अलाउ करोगे? बोलता है नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करूंगा. तो भाई अब यहां पे क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ इफ यू लुक हियर, माय टोटल एज पर टैक्स इज गोइंग टू बी नील, बट माय टोटल एज पर अकाउंट्स इज गोइंग टू बी. इज देयर अ डिफरेंस? एंड दिस इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस नाउ, बिकॉज सी टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है? अल्टीमेट टोटल सेम आ जाता है, बट हाउ दे आर स्प्रेड इज डिफरेंट. बट यहां पे तो ये टोटल डिफरेंस अलग ही रहने वाला है, कंटिन्यूस. ये कभी रिवर्स होगा ही नहीं. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद द. तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया हमारा? परमानेंट डिफरेंस. So timing difference is something which is charged in 1 year but reversed in another year. Permanent difference is something which is charged in 1 year but it is never reversed. So if you look into the definition of timing difference and permanent difference, so taxable temporary difference and deductible differences. Just hold on. Yes ma'am. नहीं कुछ नहीं, उन्होंने बोला था जब तक आएगा तब तक ही आएगा. Nothing. Perfect. So rather than going into their definition also, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, this is example of timing difference and this is example of permanent difference. Are we exactly clear with this? So what am I trying to tell you? Timing difference that is reversed in future years, and then we have difference that cannot be reversed in future years. Are we exactly clear with that one?
अब इस क्वेश्चन में रीजन फॉर डिफरेंस वाज व्हाट, चलो फिर से एक बार आ जाते हैं वापस अपने स्टेप्स पे। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था सर? टैक्सेबल प्रॉफिट था 1 लाख। करंट टैक्स कितना था? 30,000। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। दोनों का डिफरेंस कितना था? 80। व्हाट वाज द रीजन फॉर डिफरेंस? डेप्रीशिएशन। इज डेप्रीशिएशन अ टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस। सर अगर परमानेंट डिफरेंस होगा ना तो बात खत्म हो जाएगी, मतलब आप आगे जा ही नहीं पाओगे। तो यहां पे ही आपका इवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। परफेक्ट है। बट अगर टाइमिंग डिफरेंस आएगा तो वो टाइमिंग डिफरेंस लेना है, और टाइमिंग डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट के साथ। सो मैं यहां पे बोलूंगा आपके लिए पहले साल का टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है 80,000, और 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? टैक्स रेट। हाउ मच वाज टैक्स रेट? 30%। 80,000 इंटू 30%, 24,000 है ना। सो टाइमिंग डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, विल हैव थर्ड वन विच इज नोन एज डिफर्ड टैक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर सर? ये सब चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके आपके पास लेके आ रहा हूँ। डन है सर? अब टाइमिंग डिफरेंस मिल गया। टाइमिंग डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा? डिफर्ड टैक्स। कोई डाउट? पक्का? सो ये हमें मिल गया डिफर्ड टैक्स। Are we exactly clear? I am saying this is my point number 5. Either it will be a timing difference, or point number 5 it will be my permanent difference. I hope you are catching up well. No doubts? Clear? Now this deferred tax will be classified into, is this deferred tax an asset or is this deferred tax a liability? So now I'll say we have definition number 8, and that is DTA. DTA stands for deferred tax asset and 9 stands for deferred tax liability. Are we exactly clear with that one? Asset is something which is receivable in future. Liability is something which is payable in future. So DTA I term it as receivable in future. Liability I term it as payable in future. Are we exactly clear with that one? Now 24,000 is a deferred tax. वो हमें पता चल गया कि 24,000 हमारा डिफर्ड टैक्स है। सो अगर आप वापस एक बार दिमाग में नंबर्स याद रखें तो थोड़ा मजा आएगा। टैक्सेबल प्रॉफिट वाज 1 लाख, करंट टैक्स वाज 30,000, 1,80,000। सर 80,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो डेप्री की वजह से आ रहा है। सर डेप्री इज अ टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस नहीं है। सर टाइमिंग डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 आ गया। सो नाउ यू आर स्टैंडिंग एट करंट टैक्स एट 30, यू आर स्टैंडिंग एट डिफर्ड टैक्स एट 24। नहीं, आराम से डोंट प्रोसीड अहेड। अभी एग्जैक्टली क्लियर? अभी अपने को सोचना है सर, मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हैं। अभी अपने को सोचना है कि वो असेट है या वो। सो अपना वो 24,000 है ना, वो 24,000 कैन बी अ DTA और कैन बी अ DTL। कॉन्सेप्ट समझा? कैन बी अ DTA or can be a DTL. Now this is where, that's what I say,
कि मैं जब भी ये एएस में भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो ये डायग्राम से ही ये चैप्टर क्लियर हो जाता है कि सर यहीं से या तो वो DTA बनेगा या तो वो DTL बनेगा। तो पहले अपने को ये सोचना है कि वो DTA है या वो DTL है। So DTA is something which is receivable in future, DTL is something which is payable in future. तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अभी अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कैसे करेंगे अभी कि डिफरेंस सर 80,000 था ना डेप्रीशिएशन का, डेप्री ज्यादा कहां पे चार्ज किया था? अकाउंट्स में डेप्री ज्यादा चार्ज किया था या टैक्स में ज्यादा डेप्री चार्ज किया था? अकाउंट्स में डेप्री ज्यादा चार्ज किया था 20,000, टैक्स में डेप्री 1 लाख, है ना? आर यू प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग? पक्का? ओके ठीक है, इसलिए परसेप्शंस निकाल दिया अगर तेरे दिमाग से, तो कभी कभी कुछ और ही सोचता रहता है और मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ तो वहीं पे अटका हुआ होता है। यू नीड टू टेक माई ब्रेन्स, नॉट यूज योर ब्रेन्स राइट नाउ। चलो, सो हम लोग डेप्री की बात कर रहे हैं। रीजन फॉर डिफरेंस क्या था? डेप्रीशिएशन। रीजन फॉर डिफरेंस वॉज डेप्रीशिएशन। अब हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। टैक्स में डेप्री ज्यादा या टैक्स में डेप्री कम? टैक्स में डेप्री ज्यादा। अगर डेप्रीशिएशन ज्यादा तो टैक्स में एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो प्रॉफिट कम हो गया है। प्रॉफिट कम हो गया है तो टैक्स भी कम हो गया है, और टैक्स भी अगर कम हो गया है तो यू आर पेइंग लेस टैक्स नाउ। आज तुम टैक्स कम पे करोगे, पर अगर आज तुम टैक्स कम पे करोगे तो तुम फ्यूचर में टैक्स बॉस। तो मेरे हिसाब से व्हेन आई से DTL ना, तो DTL का मतलब होता है पे लेस नाउ बट पे मोर इन फ्यूचर। तो क्या बन जाएगा? DTL। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या बन गया? DTL। आज अगर कम पे करोगे तो फ्यूचर में मजे करोगे, पर आज अगर आप ज्यादा पे करोगे तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा। भाई दिस इज द लाइफ। ज्यादा हंस लो तो रोना पड़ेगा, ज्यादा रो लो तो हंसने मिलेगा। Are we exactly clear with that one? So taking it very clearly, very slowly once again. आप यहां पे 30,000 पे खड़े हो, आप यहां पे 24,000 पे खड़े हो, बस अब उसको छोड़ दो। तो अब रीजन फॉर डिफरेंस क्या था? सर डेप्री। टैक्स में डेप्री ज्यादा था या कम था? सर टैक्स में डेप्री ज्यादा था। डेप्री ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम, टैक्स कम। आज कम पे कर रहे हो, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्या बन गया वो हमारे लिए? DTL, लायबिलिटी बन गया। अच्छा, अब करंट टैक्स क्या है? असेट है या लायबिलिटी है? ऑलवेज करंट टैक्स तो लायबिलिटी ही है, और उसमें अगर हम लायबिलिटी डाल दे तो हमें करना पड़ेगा ऐड, और अगर उसमें हम DTA डाल दे तो हमें करना है लेस। So your step number 6 is calculating a deferred tax, and your step number 7 is calculating a DTA or a DTL. And current tax के अंदर आप DTA और DTL डाल दो तो आपको पॉइंट नंबर 8 पे अपना काम मिल जाएगा, and this is known as tax expense. Are we clear, sir? Any doubts? So I'll say current tax के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे? DTA या DTL, और हमें क्या मिल जाएगा? टैक्स एक्सपेंस। मतलब इतना सा सिनॉप्सिस है ना आपके सामने, जो अभी ये डायग्राम रखा है ना गाइज, ये मेरा पूरा AS22 है, पूरा AS22। क्लियर है? फिर से पहले, अभी एकदम आराम से
Now, do you know what is accounting profit? You know what is taxable profit? Accounting profit is net profit before tax as per accounts. Taxable profit is net profit before tax as per tax. Current tax is tax as per tax law. Tax expense is tax as per accounts. The difference between the current tax and the tax expense is known as deferred tax. टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है या परमानेंट डिफरेंस हो सकता है. परमानेंट डिफरेंस से डिफर्ड टैक्सेस क्रिएट नहीं होते, डिफर्ड टैक्सेस क्रिएट होते हैं सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है. उसके बाद आ जाता है DTA एंड DTL. DTAs we have to receive in future. Why we will receive in future? Because you are paying more now, so you will pay less in future. Are we exactly clear with that one? और उसके बाद आ जाएगा हमारा DTL, और ये डेफिनेशंस के साथ हो गया आपका AS22. टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, करंट टैक्स निकाल के रख दो, तो ये लायबिलिटी है सर, ये मुझे पे करना है. अब अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो, डिफरेंस निकालो अकाउंट्स और टैक्स का. रीजन क्या है नोट करके रखो कि डेप्री इज अ टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट से तो तुम्हें मिल जाएगा डिफर्ड टैक्स. अब डिफर्ड टैक्स पे आ गए, फिर क्लासीफाई करना चालू करो कि वो DTA है या वो DTL है. अगर वो DTA है तो वो लेस होगा, बिकॉज ये लायबिलिटी और ये असेट लेस हो जाएगा. ये लायबिलिटी और लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, तो हमें अपना लास्ट में क्या मिल जाएगा? टैक्स एक्सपेंस. जकास, एनी डाउट्स? टू गुड सर. अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यहां पे AS12. व्हाट इज AS12? इनकम टैक्स इन AS12. अभी हम लोग इसके पहले क्या कर रहे थे? AS22. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इन AS12. जकास कहानी है. सो ये आ गया अपना इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स के स्टेप्स, अकाउंटिंग फॉर करंट टैक्स, ऑफसेटिंग, ये सब बाद में. नाउ दिस आर द स्टेप्स, एंड हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन सी? 10. Perfect. So we'll start with first one, that is my step number 1. Calculate carrying amount of assets and liabilities. मैंने जैसे कहा ना, अब दिमाग में क्या डाल के रखो पता है? पहुंचना उधर ये 24,000 तक, पहुंचना उधर ये 54,000 तक. 30,000 ऑफ करंट टैक्स, 24,000 ऑफ डिफर्ड टैक्स. बट अब डिफरेंस कहाँ आएगा? सो वहीं पे अपने को थोड़ा डिफरेंस अभी पता चलेगा कि हमारा डिफरेंस कहाँ पे है. सो आई एम टेकिंग दिस and see what am I doing. ठीक है, सेम क्वेश्चन को ही अपन वी आर डूइंग इतना क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन दैट कि अपना काम हो जाए. कॉन्सेप्ट समझा? यही था ना ईयर 1 की कहानी. तो ये AS12 कहाँ काम कर रहा था? AS22 कहाँ काम कर रहा था? यहाँ पे. दिस इज AS22. बराबर है. मतलब यहाँ पे क्यों रखा मैंने? तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, 1,80,000, सॉरी 1,80,000 नहीं, 1,00,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. ये निकाल रहे थे ना आप? तो आप निकाल रहे थे जो डिफरेंस था ना AS12 का, वो यहाँ पे. You were looking at this depreciation.
and this was AS12, AS22. अब AS12 वहाँ पे रीचने का तरीका अलग है. वो क्या बोलता है, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी. सो ये जो अकाउंट्स का जो हमें दिख रहा है ना, असेट का कैलकुलेशन, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन था वो डिफरेंस इन डेप्री था. यहाँ पे वो बोलता है अच्छा तुम असेट दिखाओ मुझे कैसे दिख रहा है. तो अगर आपको याद हो तो हमने असेट खरीदा था 1 लाख का, और टैक्स में भी हमने असेट खरीदा था 1 लाख का. डेप्री कितना चार्ज किया, 20. डेप्री कितना चार्ज किया, 1 लाख. तो हमारा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, 80,000. इसको हम बोलते हैं कि हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. जबकि AS12 ये रीजन डिफरेंस डेप्री में निकाल रहा था, अब हम डिफरेंस डेप्री में नहीं निकाल रहे. इनफैक्ट मैं ये सब गायब कर देता हूँ और ये कैलकुलेशन तुमको असेट से समझाता हूँ. सो दिस इज माई अकाउंट्स एंड दिस इज माई टैक्स. परफेक्ट है सर. कोई डाउट्स नहीं. AS22 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. ये AS22 था. AS22 इंडेस नहीं. यस सर, कॉन्सेप्ट समझा. अब ये बोल रहे क्या कैलकुलेट करो, कैरिंग अमाउंट इज 80,000. सो दैट इज व्हाट इज माय स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट. स्टेप नंबर 2 is calculate the tax base of asset and liability. So सर ये हो गया कैरिंग अमाउंट और ये हो गया टैक्स बेस. तो अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, और इन दोनों में जो डिफरेंस निकालते हो हम लोग उसको बोल देते हैं वी हैव इंड AS 12. अल्टीमेटली डिफरेंस तो तुम्हारा वहीं पे आने वाला है जो पहले भी था, विच इज़ 80,000 का ही डिफरेंस आएगा. बट पहले हम डिफरेंस निकालते थे डेप्री में, अब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में. बट अल्टीमेटली डिफरेंस तो यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी 80. सो दिस इज 80,000 माइनस निल इज इक्वल टू 80,000. इज दिस क्लियर. अभी काम सेम हो गया. थर्ड, कैलकुलेट टेम्पररी डिफरेंस. मतलब आपको वही क्लासिफाई करना है कि ये टाइमिंग डिफरेंस है या ये परमानेंट डिफरेंस है. परमानेंट डिफरेंस या टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस को ये लोग बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस. सो स्टेप नंबर 3 पे हमने कैलकुलेट कर लिया टेम्पररी डिफरेंस. स्टेप नंबर 4 में क्लासिफाई द डिफरेंस एज deferred tax asset or deferred tax liability. So is it a taxable temporary difference or deductible temporary difference? So यहाँ पे as taxable temporary difference or deductible टेम्पररी डिफरेंस. क्लियर सर. कोई डाउट्स नहीं. कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिकॉज मेरे को थोड़ा आदत है ये स्टैंडर्ड सिखाते वक्त कि मैं पहले AS भी पढ़ा देता हूँ ताकि लोगों को पता चले. बिकॉज यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू गो आउट एंड एक्चुअली लुक आउट फॉर द फॉर्म्स हु आर एज पर AS एंड ऑल्सो एज पर इंड AS ऑल्सो. अब ये मैं इसीलिए सिखाता हूँ बिकॉज थोड़ा इंड AS लोगों को जानने में कॉम्प्लिकेट लगता है. तो आप AS का दिमाग अप्लाई करके निकाल दो आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज एक्सपेंस का डिफरेंस निकालना ज़्यादा ईजी होता है. वो टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस निकालने में मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगता है उल्टा. सो आई ऑलवेज फील AS22 इज मच मोर सिंपल देन इंड AS 12. मैं आगे जाके क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहीं पे पता चल जाएगा. स्टेप नंबर 4, 1 कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेट द टैक्स बेस, आइडेंटिफाई द डिफरेंस, कैलकुलेट द टेम्पररी डिफरेंस, क्लासिफाई इट एज अ टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस. आर वी क्लियर विद दिस वन. स्टेप नंबर 5, आइडेंटिफाई
एक्सेप्शंस अलाउड है थोड़े, वो आइडेंटिफाई करना है. स्टेप नंबर 6, assess the temporary difference. So assess the temporary difference. बराबर है. टैक्स लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स. बेसिकली मैं असेस डीटीए. डीटीएल क्रिएट करने में शर्म नहीं है. बराबर है. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग विद केस ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग टैक्स तो कर लेते हो, बट अगेन एक रॉन्ग परसेप्शन चला जाता है टैक्स करने में. गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करता है? एकदम ही गलत. नो. परफेक्ट. So have a look here. This is where again our little bit of understanding goes wrong. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खाली difference between AS 22 and Ind AS 12 for finding the difference. बराबर है सर? Now where we lack a little bit of a more knowledge also, which I require you guys for you guys in CA final, is सब भूल जाता है. सारी कहानी ज़ीरो. भूल जाओ कि आप ये स्टैंडर्ड्स में हो. So let's say my net profit before tax is 2 lakhs and let's say my tax rate is 30%. How much of tax I am required to pay? 30,000. Then 54. Sorry. 60,000. कैलसी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मेरा मेंटल था 60,000. मेंटल मैक्स मिक्स नहीं है. यू हैव अ थिंक ऑफ अटैचिंग थिंग्स हियर एंड देयर. मेरा EPF. चलो, इज दिस 60,000? सो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,40,000. बराबर ना? चलो, माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज -2 lakhs. मतलब इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम नॉट हैविंग प्रॉफिट्स, आई एम हैविंग लॉसेस. सो हाउ मच शुड बी माई टैक्स? nil. And how much should be my net profit after tax? -2 lakhs. Perfect है. So that means your brain tells you कि सर हमें प्रॉफिट है तो टैक्स भरना है और हमें लॉस है तो टैक्स नहीं भरना है. अगर मैं इसको एकदम आराम से सोचूं कि अगर प्रॉफिट है तो टैक्स भरना है और लॉस है तो टैक्स नहीं भरना है, तो ये तो एक पनिशमेंट हुआ. मतलब इट्स लाइक यू स्कोर्ड गुड और डैड ने एक बजा के दिया. क्या इतना अच्छा क्यों लेके आया? डैड शुड बी रिवॉर्डिंग यू और शुड बी स्लैपिंग यू, बट ही स्लैपिंग यू. और इनफैक्ट अगर लॉस हुआ तो आपको टैक्स नहीं भरना है. दैट मीन्स ही इज रिवॉर्डिंग यू नाउ. अच्छा फेल हो गया, वाओ, चल होटल जाता है. क्लियर है? सो सर गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम यू. ऑफकोर्स बाकी सारे बहुत सारे रीज़न जो आप बोल रहे हो वो ट्रू है. सो येस, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वाई गवर्नमेंट टैक्सेस यू is government is a de facto economic partner, or government is a de facto partner to all economic activities in your country. मतलब अगर आप इस कंट्री में कुछ भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपका पार्टनर है. गवर्नमेंट हर एक रास्ते में चाय बेचने वाले का पार्टनर है, हर एक वड़ा पाव बेचने वाले का पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, मैं क्लासेस चला रहा हूं. सारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं गवर्नमेंट उसका पार्टनर है. एंड नाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग कि ऑन व्हाट बेसिस. अब चाय वाला ने पूछा गवर्नमेंट को, तुम मेरे पार्टनर कहां से बन गए? यार साला धूप में मैं मर रहा हूं, स्टॉल मैंने लगाया, चाय मैं बना रहा हूं, कस्टमर्स आ रहे हैं चाय पी के जा रहे हैं, तो तुम पार्टनर कहां से बने? तो गवर्नमेंट बोलता है भाई तुम्हारा स्टॉल किधर है, वो जगह किसका है? अच्छा अगर कस्टमर आ रहे तो कहाँ से आ रहा है?
क्योंकि मैंने आपको इंफ्रा सेट करके दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने भी एक बार ऐसे मन किया था, तो मैंने गवर्नमेंट को पूछा, भाई क्लासेस मैं चला रहा हूँ, रोज़ सुबह उठ के मैं आता हूँ, लेक्चर्स मैं लिखता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम मैंने लगाई है, ये खर्चा पूरा मैंने किया, तुमने क्या किया? बोलते स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? तो मला स्टूडेंट ट्रेन से आ रहे हैं। तो बोलता है उसका पैसा। मला वो तो ट्रेन का टिकट भरता है। बोलता है वो ट्रेन का टिकट भरता है, बट वो नेटवर्क सेट करने का पैसा नहीं दिया उन्होंने। यू आर गिविंग मनी टू ऑपरेट दैट, बट यू आर नॉट गिविंग मनी टू सेट दैट अप। सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, पर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा सेट करने के लिए मैंने कहा कोई पैसे दिए। कॉन्सेप्ट समझा? सो ही सेज ही इज अ डी फैक्टो पार्टनर। आई सेड वाओ, सो यू आर माई पार्टनर? बोलता हाँ। बोला दैट मीन्स दैट यू विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड यू विल ऑल्सो शेयर द लॉस। बोलता यस। बोला आर यू श्योर? बोलता yes, of course, I'm 100% sure. So sir, that means कि अगर मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 60,000 का टैक्स लेके जाता है, तो अगर मुझे 2 लाख का लॉस हो तो ही शुड पे मी 60,000। so that my loss decreases to 1,40,000। बोलता yes राहुल, of course। ना ना सर ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस इज वेयर एक सिंपल नॉर्मल लेमैन का नॉलेज वीक हो जाता है थोड़ा। बिकॉज पहला एक अंडरस्टैंडिंग ये था कि प्रॉफिट पे टैक्स है, लॉस पे टैक्स नहीं है। आंसर इज गलत। पहले तो एक्सेप्ट करो कि प्रॉफिट पे टैक्स है, लॉस पे टैक्स रिकवरी भी है। मतलब अगर प्रॉफिट है तो हम टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को, और लॉस होगा तो गवर्नमेंट हमको टैक्स भरेगा। हाँ वो करेंगे, क्योंकि अगर उसके वजह से लोग मेरे पास आ रहे तो उसकी वजह से लोग मेरे पास नहीं भी आ रहे। नहीं वो करेंगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डोंट प्रीसीड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू डोंट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। तू मेरे को बोल देता है मैं यहाँ पे वीक हूँ, डोंट एक्सेप्ट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम कहीं वीक नहीं हो, यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। द ओनली थिंग दैट अ वीकनेस दैट वी हैव एट टाइम्स इज वी आर प्री ऑक्यूपाइड विद सर्टेन थॉट। तो तू आगे क्यों सोच रहा है? मैं लेके गया तेरे को आगे? नहीं ना, आराम से मजे करना। हम लोग ट्रैक पे जाते हैं ना, सो द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैक वी तो एंजॉय नाउ। अब ट्रैकिंग क्या हो गया, एक काइंड ऑफ क्या बोले, एक एंटरटेनमेंट हो गया लोगों के लिए। हाफ ऑफ द क्राउड कम देयर टू शो ऑफ दैट वी ट्रैक, and they will click photographs, they'll put it on Instagram, we completed this track, we completed that track and all that stuff। बट अगर तुम उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ देखोगे ना पूरे दिन की हमारे साथ ट्रैकिंग पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो सुबह हमें उठना होता है 5 बजे, 6 बजे चाय आ जाती है, 7 बजे वी स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, and we walk, we climb, pass through jungles, too much of heat, all that stuff keeps on coming। दोपहर को 2-3 बज जाए, ब्रेक लेके खाना खा के वापस चलना है। फिर लोगों का हिम्मत टूट रहा है, so they'll always ask कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। तो ट्रैक लीडर का आंसर बेस्ट होता है, बस 2 किलोमीटर और ऐसे वो 2-2 किलोमीटर करके एक्चुअली हम लोग 20 किलोमीटर चल लेते हैं। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, व्हाट आर यू देयर फॉर? क्यों जाते हो ट्रैक करने? टू रीच समवेयर? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यू डोंट गो टू रीच समवेयर, दैट इज ओनली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग। द आइडिया इज दैट यू आर देयर ऑन अ ट्रैक फॉर 10 days, you enjoy all the 10 days। At times you are going to climb, at times you are going to get down, बी देयर। उतना ही सोचो जितना हम वहां तक है। अगर हम चलना चालू कर रहे हैं ये सोच के कि वहां पे कब पहुंचेंगे, तो वो चलने को तो हम एंजॉय कर ही नहीं पा रहे। आई माइट हैव डन लाइक 10 or 20 ट्रैक्स बाय नाउ,
The best part of the trek that I remember is the most difficult climb we did with gutsy winds. लिटरली एक एक स्टेप डालने में ऐसा लग रहा था कि हमें लाइक 15 किलो का वजन लेके चल रहे हैं, हम 50 किलो का वजन लेके चल रहे हैं, ऐसे समझ लो, बिकॉज वो पैर ही आगे नहीं चलता था. सो गट्सी विन एंड कोल्ड. सो इनफैक्ट वी वर कवर्ड लाइक दिस मच एंड खाली आंख, और वहाँ पे भी हम लोग ने वो ग्लेयर्स पहने थे. तो एक्चुअली नथिंग इज एक्सपोज, बट फिर भी इतना हवा ना, अगर वो प्री ऑक्यूपाइड विद थिंकिंग रहे ना कि हम वहाँ पे कब पहुँच जाएंगे, ऊपर वो दिख रहा है, तो आप ये इंजॉय नहीं कर रहे हो. ऑलवेज एंजॉय वट एवर यू डूइंग. तो पहले तुम एक चीज एक्सेप्ट कर लो, सिंपल सी चीज. प्रॉफिट होगा, टैक्स पे करना है. लॉस होगा, टैक्स रिकवर करना है. परफेक्ट है. तो वो एक छोटे 10th बच्चे या 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन वाले बच्चे की कहानी तो खत्म कर दी मैंने. ग्रेजुएशन वाला बच्चा कहता है सर प्रॉफिट है, टैक्स है, लॉस है सर, नो टैक्स. तो वो बात तो हमने खत्म कर दी पहले. अब आगे बढ़ता. तो सर अब ये टैक्स कैसे वसूल करोगे आप गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट यहां पे खाली एक सुपीरियोरिटी लेता है अपने से. ही सेज आई एम योर पार्टनर फॉर श्योर, बट अ लिटिल बिट ऑफ सुपीरियर पार्टनर. आई सेड व्हाट टर्मिनोलॉजी में सुपीरियर? बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा शेयर मैं खुद डिसाइड करूंगा. तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में हो तो कहना सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करोगे ना कौन क्या शेयर करेगा, पर ये बोलता है मैं खुद अपना शेयर डिसाइड करूंगा. तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट. बोला चलो सही है, ठीक है. बोला सेकंड, बोलता अगर तुम्हें लॉस हो जाए तो मैं तुम्हें कैश नहीं दूंगा. तो मैं यार ये क्या बात हुई, अभी तो इतने टाइम से तुम मुझे समझा रहे थे कि प्रॉफिट करोगे तो तुम मुझसे पैसा लोगे और लॉस करोगे तो तुम मुझे पैसा दोगे. तो बोलता अरे रुक जा भाई, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, बट मैं तुम्हें एक राइट दूंगा कि तुम जब नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट करोगे तो जो मुझसे लेना है उतना कम भर देना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बोला अच्छा ऐसा. तो बोलता है देखो ये साल में आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया, आई विल नॉट पे यू एनीथिंग. तो यू कीप ऑन सफरिंग द लॉस ऑफ 2 लाख, बट नाउ यू रिमेंबर दैट आपको मुझसे 60,000 रुपए लेने हैं. बोला अच्छा. तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग 4 लाख का प्रॉफिट करें तो मुझे 4 लाख का 30% 1,20,000 भरना पड़ेगा, पर उसकी जगह पे तुम 60,000 ही भरना खाली. क्यों 60,000 भरना? बिकॉज यहां पे तुम्हें मुझसे 60,000 वसूल करना है, तो 60,000 ही भरना. एंड दैट मीन्स यू आर गोइंग टू एंजॉय 3,40,000. कॉन्सेप्ट समझा? इसी को हम सेट ऑफ बोलते हैं. बट सेट ऑफ मारने के लिए कहने से आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होना चाहिए. अच्छा वो गारंटी है कि आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन अनसर्टन वर्ल्ड. सो ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह से क्या बोलता है कि अगर आपको DTL बनाना है, क्या बनाना है? DTL बनाना है, तो आप बिंदास बना दो. पर DTA बनाते वक्त एक बार अपने आप से पूछना कि क्या ये हम DTA फ्यूचर में रिकवर कर पाए. व्हाट इज DTA? नाम क्या है DTA? व्हाट इज DTA? DTA का मतलब है रिसीवेबल. कहां से रिसीवेबल? गवर्नमेंट से रिकवरेबल. देने वाला है वो पैसा? नहीं. पैसा फ्यूचर में आप कमा लो और उसमें से माइनस कर लो. आई अग्री कि आई हैव टू पे यू, बट आई विल नॉट पे यू. You earn in future, pay me less. But that means you should have a capacity to earn in future. But in the uncertainty that I'm standing right now, if I'm not sure कि I'm going to earn in future, don't create DTA. और इसीलिए इन्होंने एक पूरा स्टेप नंबर 6 डाला है कि you have to assess DTA. DTA क्रिएट करते वक्त असेसमेंट करो कि आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमा लोगे कि नहीं कमा लोगे. बट DTL का असेसमेंट जरूरी. सो कैरिंग अमाउंट निकालो, टैक्स बेस निकालो, टेम्पररी डिफरेंस निकालो, उसे क्लासिफाई कर दो. क्लासिफाई करने के बाद एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करने के बाद असेस कर लो. बट क्या असेस करो? सिर्फ DTA. स्टेप नंबर 7, डिटरमाइन द टैक्स रेट.
अब मैंने यहाँ पे बोल के रखा था आपको टैक्स रेट 30% है. स्टेप नंबर 8, कैलकुलेट एंड रिकॉग्नाइज द deferred tax. Calculate and recognize the deferred tax. Step number 9, account for deferred tax. अगर DTA होगा तो उसका accounting entry, DTL होगा तो उसका accounting entry. Are we exactly clear with that one? And last one is step number 10, offsetting. DTA and DTL should be offset. बैलेंस शीट में एक ही अमाउंट दिखेगा, आइदर DTA और DTL, बट नोट्स टू अकाउंट्स में पूरी कहानी. इनफैक्ट एवरी असेट के लिए अलग का DTA कैलकुलेशन, DTL कैलकुलेशन, एवरी लायबिलिटी के लिए अलग से DTA का कैलकुलेशन, DTL का कैलकुलेशन. कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? पक्का एकदम? टू गुड. हाउ मेनी स्टेप्स? स्टेप 1, कैरिंग अमाउंट, tax base, difference. 4, classify कि वो deductible temporary difference है, that is DTA, या taxable temporary difference है. classify करने के बाद exceptions करने के बाद अगर वो deductible temporary difference है तो उसका assessment, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, deferred tax कैलकुलेट करो, deferred tax कैलकुलेट करने के बाद अकाउंट कर लो और लास्ट में ऑफसेट कर लो. पक्का? नो डाउट्स ऑन दैट? श्योरली? टू गुड. अब एक बार पहले माइंड जीरो कर देते पूरा और वापस एक बार आ जाते स्टैंडर्ड पे. डन? फ्रेश. अकाउंटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स. टैक्सेबल प्रॉफिट, then current tax, tax as per tax laws, tax expense, and I would say tax expense is nothing but current tax add or less deferred taxes. Are we exactly clear with that one? Difference, timing difference, permanent difference, and difference के बाद आएगा deferred taxes. It can either be a DTA or it can either be a DTL. AS 22 में सोचने का तरीका होगा एक्सपेंस इनकम का डिफरेंस. टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. इफ़ यू आर पेइंग मोर टैक्स नाउ यू विल पे लेस इन फ्यूचर, DTA. इफ़ यू आर पेइंग लेस टैक्स नाउ यू विल हैव टू पे मोर इन फ्यूचर, DTL. अब अकाउंटिंग में सोचने का तरीका, मतलब एज पर इंड एस सोचने का तरीका, वो भी हम लेके आएंगे. सो ये क्लासीफाई पे ही लिख देता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज माई नोट. परफेक्ट है. अब ये जो डिफरेंस था आपका, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे सोचने का तरीका क्या अलग था. तो पहले AS सोचते हैं. AS में हमने क्या सोचा कि सर टैक्स में कितना डेप्री चार्ज किया, 1 लाख. अकाउंट्स में कितना डेप्री चार्ज किया, 20,000. सर कितने का डिफरेंस आया, 80,000 का डिफरेंस आ गया. सर टैक्स में एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज किया, टैक्स में एक्सपेंस ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, तो टैक्स कम. पे लेस नाउ, पे मोर इन फ्यूचर. थिंकिंग. AS 22. डेप्री इज मोर इन टैक्स, बराबर है. सो एक्सपेंस is higher, profit lower, tax lower, pay less now, pay more in future, DTL. Clear? Ind AS 12. परफेक्ट है. बहुत सिंपल है. 1, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस फॉर असेट, हाँ,
So what is the carrying amount of asset? 18,000. What is tax base of the asset? B. So can I say the carrying amount is greater than tax base? Yes. तो आंसर DTL. यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ पे ये बाय हार्ट हो जाता है. If the carrying amount is greater than tax base for an asset, DTL. Simple. Now I can tell you, if tax basis, or I would rather keep on carrying amount only, is less than tax base for asset, DTA. If carrying amount is greater than tax base for liability, DTA. If carrying amount is less than tax base for liability, DTL.